बच्चों पॉलिनोमियल में हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 में हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus so on plus a1 x plus a0, where a n minus 1 and so on a1 and a0 are constant and also an is not equal to 0। यह पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कहलाता है। यदि an is equal to an minus 1 is equal to so on a1 is equal to 0, then यह पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है और यह पॉलिनोमियल को px से इंडिकेट करते हैं और वह px इक्वल टू a0 के बराबर होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ओमिट रहता है, वेरिएबल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के संज्ञा दिया गया है। दूसरा केस इफ an इक्वल टू an minus 1 is equal to so on is equal to a0 is equal to 0, तो इस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है और इसका दूसरा नाम जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है और इसे px इक्वल टू 0 से इंडिकेट करते हैं। अब बच्चों पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इफ ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म then it is called monomial। Second, if a polynomial containing two terms, that is called binomials, and if a polynomial containing three terms, then it is called trinomials, and if a polynomial containing more than three terms, then it is generally called polynomials। For example, monomials, that is containing only one term, that is ax, which contains only one term, so it is called monomials। bx। Secondly, binomial ax plus b, in which contains two terms ax and b with positive sign, so it is called binomials। Thirdly, trinomial, it contains three terms, that is ax square plus bx plus c, so it is called trinomials। And if a polynomial containing more than three terms, then it is generally called polynomials। That is a0 plus a1x plus a2x square plus so on to an x to the power n, it is called polynomial because it contains more than three terms। बच्चों अब पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल के डिग्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिग्री क्या है? डिग्री, the highest power of the variable is called degree, and if in polynomial if degree is 1, then it is called linear polynomial, and the general form of a linear polynomial is ax plus b। If the degree of the polynomial is 2, then it is called quadratic polynomial, and the general form of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, and if the degree is 3, then it is called cubic polynomial, and the general form of a cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus b। In case of linear polynomial, it has at least one term and at most two terms, and in a quadratic polynomial, it has at least one term and at most three terms, and in the case of cubic polynomial, it has at least one term and at most four terms।
हम बच्चों पोलिनोमियल में जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरो क्या है। जीरो यदि px इक्वल टू 2x² - 5 अगर कोई पोलिनोमियल है, यह पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि x का पावर 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। अगर x का मान अगर 1 डाल देते हैं तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू p1 हो जाता है और जो 2 - 5 दैट इज -3 के बराबर होता है। अतः p1 बराबर है -3, अर्थात the value of the polynomial at x equal to 1 is -3. But if the values of the polynomial at any value of x is 0, then it is called zeros of the polynomials. So zeros of the polynomials is that real numbers which make the polynomial zero, and the zero of the polynomial is obtained by equating the polynomial to 0. बच्चों दूसरा एग्जाम्पल px इक्वल टू 3√2x - 5। अगर x के जगह पर 2 डाल देते हैं तो px कितना के बराबर हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू x के जगह पर अगर 2 डाल देते हैं तो 3√2 इंटू 2 - 5 अर्थात 6√2 - 5। यह 6√2 - 5 यह px का वैल्यू आया कब, जब x बराबर है 2 है, और इसी को कहते हैं द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल x बराबर है 2 पर। अब बच्चों पोलिनोमियल में अब ये जानना चाहेंगे कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो किसी भी पोलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है। अगर उदाहरण में अगर कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू 2x - 3, तो इस पोलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं, दैट इज px इक्वल टू 0, अर्थात px बराबर 2x - 3 है तो 2x - 3 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3/2। अतः इस पोलिनोमियल का जीरो 3/2 है। इसका दूसरा उदाहरण बताते हैं px इक्वल टू 5x² - 3। तो इस पोलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए सबसे पहले इस पोलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, अर्थात px इक्वल टू 0 और px है 5x² - 3 के बराबर, तो देयरफॉर 5x² - 3 इक्वल टू 0, इसलिए x² इक्वल टू 3/5, देयरफॉर x इक्वल टू ±√3/5, अर्थात इसका जो जीरो आएगा +√3/5 और -√3/5। चूंकि यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 5x² - 3 यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और चूंकि इसका डिग्री 2 है इसलिए इसका जीरो 2 आएगा, और वह 2 आएगा तो इसमें फर्स्ट जीरो √3/5 और दूसरा जीरो -√3/5 होगा। अब विद्यार्थी हम पोलिनोमियल चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम बताने जा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? सबसे पहले अगर 15 में अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 क्वोशेंट मिलता है और 3 रिमाइंडर मिलता है, दैट इज 6 goes into 15 2 times and we get 3 as a remainder, that is 15 is equal to 6 into 2 plus 3, यानी 3 रिमाइंडर है। तो यह फैक्ट को जनरलाइज करके एक स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। इफ px be any polynomial having degree equal to 1 या greater than 1 and a be any real number, so if px polynomial px is divided by a linear polynomial x minus a, then pa is the remainder
which is called remainder theorem. एक उदाहरण बता रहे हैं, अगर कोई भी पोलिनोमियल px है जो 3x² - 5x + 4 है और एक दूसरा पोलिनोमियल gx है जो x - 2 है, यह लीनियर पोलिनोमियल है। px क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और gx लीनियर पोलिनोमियल है। अगर px पोलिनोमियल में अगर gx से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा? इसी रिमाइंडर को निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। सबसे पहले एक जिससे भाग देना है, डिवीजर जो है gx, इस gx का 0 निकालते हैं सबसे पहले। तो इस रिमाइंडर का gx बराबर है 0 या x - 2 बराबर है 0 या x बराबर है 2, अर्थात gx जो पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का 0 2 है। अब यह 2 पोलिनोमियल px में x के जगह पर डाल देते हैं और जो इसका सॉल्व करने के बाद मान आता है, वैल्यू आता है, यही हमारा रिमाइंडर आता है जब px को gx से डिवाइड करते हैं। अर्थात px को जब gx से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 6 आता है। यह रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा इजी फॉर्म में निकाला जा सकता है। अगर ऐसे 3x² - 5x + 4 को अगर x - 2 से डिवाइड करते हैं तो यह लॉन्गर एंड टीडियस प्रोसेस आ जाता है, निकल सकता है, लेकिन इसको इजी फॉर्म में निकालने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं और इस रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा इजी फॉर्म में हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं और यह रिमाइंडर P2 = 6 आता है। हाँ बच्चों, अब फैक्टर थ्योरम के बारे में बताने जा रहे हैं। जो फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर मीन्स डिवाइड एनी पोलिनोमियल बाय another polynomial such that the remainder is 0, that is called factor। तो फैक्टर थ्योरम में माना कि px कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और दूसरा कोई लीनियर पोलिनोमियल gx = x - b है। अगर px में gx से अगर डिवाइड करते हैं, px कोई पोलिनोमियल में अगर gx लीनियर पोलिनोमियल से अगर डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार अगर रिमाइंडर अगर 0 आता है, देन वी से दैट x - b इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम का एक एग्जांपल बताते हैं। अगर माना कि px कोई पोलिनोमियल है x² - 4x + 4 जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और दूसरा पोलिनोमियल gx = x - 2। तो अगर px में gx से अगर डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो gx that is x - 2 px का फैक्टर कहलाता है। तो फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले gx का 0 निकालते हैं, लीनियर पोलिनोमियल gx का 0 निकालते हैं। तो 0 निकालने के लिए सबसे पहले पोलिनोमियल gx को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। तो gx = 0 या x - 2 = 0 या x बराबर है 2, अर्थात पोलिनोमियल gx का 0 2 आता है और यह 2 पोलिनोमियल px = x² - 4x + 4 में डालते हैं x के जगह पर 2, तो यह पोलिनोमियल कितना आ जाता है? P2 = 4 - 8 + 4 = 0 या इसे सॉल्व करने पर यह 0 आता है, अर्थात x - 2 px का फैक्टर कहलाता है। अर्थात gx is the factor of the given polynomial px, because if px is divided by gx then the remainder is 0, so gx that is x - 2 is a factor of the given polynomial px that is x² - 4x + 4। ठीक है, एक नया टॉपिक आता है पोलिनोमियल में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब सबसे पहले आता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इज दैट अलजेब्रिक इक्वेशन व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच टेक पार्ट इन द इक्वेशन, दैट इज
फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y LHS that is x plus y का होल स्क्वायर का मान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के मान के बराबर आता है, अतः इसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। दूसरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। x और y कोई दो वैल्यू के लिए LHS और RHS लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होता है किसी भी वैल्यू के लिए। उसी तरह से थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यह भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है क्योंकि x और y के किसी भी मान के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आते हैं, अतः इसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं और इसका उपयोग फैक्टराइजेशन में इजी रूप में किया जाता है।